Shashank sir, EV adoption, loads and loads of questions are raised, but I'll start with a very simple and straight question. Is India now ready for EV? I think we are getting there, but we are not yet ready. And that is reflected in the fact that out of the 30,70,000 vehicles, passenger vehicles which were sold last year, just 21,000 were EVs. And this year, expected sale of about 50,000 in an industry of about 39 lakhs. Still very far from a big adoption. But remember, the adoption curve for EVs will differ across different categories. So two-wheeler and three-wheeler, it's already quite high. It's whereas for four-wheeler, is last year it was less than 1%. And I think there are two major constraints as we have been discussing. One is the cost of the vehicle itself, the cost of acquisition, and second is the charging infrastructure, which in our country seems to be not so well developed. But the expectation is that this 1% of today will become about 3% in 24-25. That's 2 years from now. And by 2030, it would be about 17 to 20%. That's roughly 1 million cars in 2030, and on a cumulative basis, about 4 million cars from today till 2030. Gaurav sir, as Shashank ji said, ki affordability is a big issue. That is the biggest challenge that industry is also facing. Now, how to make EVs affordable? क्योंकि आपकी दो गाड़ियाँ मौजूद हैं, तीसरी गाड़ी का तैयारी पूरी हो चुकी है, और कॉमेट का तो बॉडी शेप भी ऐसा है जो कि लोगों को पसंद भी आएगा और उसमें दो राय भी रह सकती है. तो इन दैट केस हाउ डू यू प्लान टू मेक EV अफोर्डेबल टू एवरीबडी? So there are two aspects to this. Firstly, the story of EV has to be well understood by the customers and by all of us as stakeholders. So whether it's manufacturers, whether it is the infrastructure players, all the stakeholders have to come together to understand, and most important for the customer. The way I see it is that EVs are easy for youngsters, it's easy for middle age and for senior citizens. How? Number one, EVs are automatic, so it's easy to drive. Number two, cost, again, Shashank will have a difference in opinion, but I will again reinforce that maths, that अगर मुझे गाड़ी चलानी है 15,000-20,000 किलोमीटर साल का, तो मेरा खर्चा आता है पेट्रोल का अराउंड 1.8 लाख रुपीज़. वही खर्चा अगर मैं EMI में करता हूँ, I can get to an EV ownership. So even if my car is slightly more expensive, my EMI plus petrol cost of an ICE vehicle will be equal to my EMI, let's say, for an EV vehicle. And EV vehicle mein I have ease of mobility. I'm feeling more conscious about the environment also. What future are we giving to our children? What future are we giving to our grandchildren, for example? So there becomes a collective responsibility. And I see a future where 300, 350, 400 की जो रेंज है वो तो हर एक गाड़ी में आजकल हो ही रही है, for example. But this industry will really kick off, like you talked about Rockstar, auto is there. The moment you have daily use के लिए, mobiles में भी जैसे हरदीप ने कहा था that it became a huge trend. So the moment you start talking about a daily battery life, so that is one way of reducing cost, which means that if you're getting a range of even 250 kilometers in a car, and if you see कि मेरी daily need कितनी है, if I'm driving 50 kilometers a day, 70 kilometers a day, it is more than covering my requirements. That then, if you start looking at that concept to make it affordable, bring the battery to a daily use cycle, use that for daily mobility needs, and that is when the era will really blossom even more. And in terms of charging infrastructure, I agree, partly by Shashank also, but I also want to add here that today the way these batteries are made, and even if you are living, even a 16 ampere socket, जो normal हमारा power का socket होता है, even that can also charge the vehicle. So today you are seeing a lot of trends coming in now. Shopping malls are putting up chargers, office complexes are putting up chargers, or even plug points, where they are putting up, if you come and park there, you can charge your vehicle. So there will be a change time, जो कहते हैं ना, there's the change is always a bit more debatable. Yes, no, no, yes. The direction is clear. In different segments, the pace will be different. But
I think the responsibility is on all of us. We see value in the economics in maths, we see value in the environment, and we definitely see value in conserving our government's oil pool deficit also, the kind of budget deficit we have. And so the faster we move to cleaner fuels, we'll see a much better trend. इकोसिस्टम की एक ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज जो है वो कम हो रहा है, लेकिन you think that there is some sort of incentive is also required, support is also required from government side, or the industry is all ready and they can take the challenge on their own? देखिए, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है अगर आती है तो हमेशा बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव है फ़ायदा होता है। बट मैं गौरव की बात पे जा रहा हूँ वापस कि 80 से 90% लोग जो हैं वो अगर होम चार्जिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो जो हम रेंज एंग्जाइटी की बात कर रहे थे, तो रेंज एंग्जाइटी अब क्या हो रहा है कि पहले जो गाड़ियों का चार्ज था वो 100 से 200 किलोमीटर तक था और 250 किलोमीटर तक था जब लोगों को रेंज एंग्जाइटी हो रही थी। लेकिन अगर आप रिसेंटली जो देखोगे, जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो 250, 300, 350, हमने जो EV6 लॉन्च करा था उसका रेंज है 528 किलोमीटर। और जैसे गौरव ने बोला कि अगर रेंज इतनी अच्छी है, अगर आपको यहाँ से अमृतसर या जयपुर भी जाना है तो 528 किलोमीटर, मेरे ख्याल से भारत में कोई 500 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिन में नहीं चलाता है। तो अगर 500 किलोमीटर आपकी रेंज है और जो धीरे धीरे बाकी मास मार्केट गाड़ियाँ भी वो भी 300 प्लस पे जा रही है। और अगर हमने देखा कि अगर आज से 10 साल पहले हमारी जो नोकिया या 15 साल पहले नोकिया की बैटरी थी वो निकाल के आप फिर चार्ज करते थे और ख़त्म हो जाती थी, आज के दिन में जो चार्जिंग है उसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, जिसके कारण मेरे ख्याल से जब जैसे जैसे बैटरी कैपेसिटी बढ़ेगी, रेंज बढ़ेगी, ये जो रेंज एंग्जाइटी है वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी। और जो 80 से 90% लोग वैसे भी होम चार्ज करते हैं, अगर आप सिटी ड्राइविंग करते हैं, अगर आप मान लो 100 किलोमीटर भी अप एंड डाउन करते हैं डेली और शाम को आके आप अपनी गाड़ी चार्ज पे लगा देते हो, तो एटलीस्ट जो सिटी वाला कस्टमर हो तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए इस केस में। सिर्फ जो बाहर जा रहे हैं कस्टमर, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, 500-400 किलोमीटर चला रहे हैं, उसके लिए जो हाईवे चार्जेस हैं, और उसमें कंपनीज़ ने भी इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है और कंपनियों ने भी और भारत सरकार ने भी इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से अगर हम दिनों को कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और जो कमिंग टू योर पॉइंट कि सब्सिडी चाहिए, येस डेफिनेटली अगर किसी तरह का बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वो सब चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम CPO बोलते हैं, या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन दोनों को थोड़ी और एनर्जी मिलती है कि हाँ चलो और थोड़ा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जाए। I'm sorry, I'm interrupt. I want to add to what Hardeep said. I think सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया है इंडस्ट्री को। अगर आप ऐड करते हो चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स, प्लस अभी रिसेंटली 2 साल हो गए ऑलरेडी जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है सरकार की, टू बी एबल टू मेक द बैटरी एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी विद इन इंडिया। सो बैटरी के अंदर सेल की मैन्युफैक्चरिंग अभी वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड है, कुछ ही कंपनीज़ में और कुछ ही कंट्रीज़ के पास है। टू इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरर्स इन दिस एरिया इज़ द बिग स्टेप। इसके अलावा कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि आज के दिन में ज़ीरो RTO चार्ज, दिल्ली में हम जहाँ हैं अभी, दिल्ली में ज़ीरो RTO फीस है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो देयर आर लॉट ऑफ सच इंसेंटिव विच आर देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, एंड आई थिंक ऑल दिस एडिंग टुगेदर विल कीप द मोमेंटम गोइंग अप। गौरव, आपने इस बार के ऑटो एक्सपो में हाइड्रोजन सेल भी दिखाया था, हाइड्रोजन पावर्ड गाड़ी भी दिखाई थी, तो इन सभी चीज़ों का आंसर क्या हाइड्रोजन और इथेनॉल पे बात शशांक सर करेंगे, पर हाइड्रोजन भी क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है फॉर ग्रीन मोबिलिटी? See, I will say that MG as a brand, we stand for auto tech. So right from the first car which came in, एक term जैसे we heard about ours, the technology in the passenger car segment, at least in the automotive industry, is moving towards in 4 pillars. Just for discussion sake, it is called CASE, C-A-S-E. So C is for connected cars. So all the SIM card is in the car itself. So the cars are connected to the and in the future you will see it's called V2V, V2X. So that is part of connected cars. The second is A, which is CASE का A is autonomous level cars. So you have autonomous level 1, level 2 cars now in the market. हम MG की अगर बोलूँ तो हमारी Aster और Gloster level 2 level 1 है. Then S is for shared mobility. Anuj talked about how the ride sharing mobility systems have come up in the country, and E is for electric, right? And then electric actually will be expanded in the future because my change in this whole request, E becomes emissions.
you know, how the emissions will change in the future. So it's not just electric, it's hydrogen, it's fuel cell, etc. So case is the fundamental on which at least at MG we are working on the products to come to the market. And you talked about on the Auto Expo. So Auto Expo, आप लोग में से कुछ ही लोग गए होंगे और शायद कुछ लोगों ने फोटोज देखी होंगी क्योंकि दूर था इन ग्रेटर नोएडा. इट्स नॉट वेरी easy to get there and traffic situation will take you 2 hours to reach there also. But we had shown all the portfolio regarding plug-in hybrid, pure electric vehicles and hydrogen fuel cell, and all of them are running. They are not just concept cars. These cars are running in our operations globally. So we see a future which is going to be a very mixed future. So Shang talked about CNG, so there will be a portion of CNG, there will be a portion of electric. You will see hydrogen, ICE coming more in commercial vehicles to begin with. You will again see ICE vehicles. Diesel, petrol will continue for some time. So you see, each and every of these areas will start taking small subsets in the overall ownership cycle. कि लग्जरी कार मार्केट का तो क्लियर है, वहाँ पे आइस और इलेक्ट्रिक में दाम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, प्राइसेस आर ऑलमोस्ट द सेम. देयर आर सर्टेन केसेस, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मर्क EQS द प्राइसेस आर एक्चुअली डाउन इन केस ऑफ AMGs, राइट. सो इन द सेम मैनर क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जब मास मार्केट की जो गाड़ियाँ होंगी वो भी आइस और इलेक्ट्रिक एक ही दाम पे मिलेंगी? नहीं, हो सकता है, बिल्कुल. वो सब कुछ उस बात पे मशरूत है कि बैटरी की कीमतें किस कदर गिरती हैं. बैटरी की कीमत इस समय अगर आप देखें करीब $150 पर किलोवाट आवर का रेट है. ये एक ज़माना था जब तीन साल पहले इट वाज अज्यूम दैट दिस 150 विल कम डाउन टू $100. बट आप जानते हैं निकल है, कोबाल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट की प्राइसेस हैं, वो दरअसल काफ़ी ऊंचाई उसमें बहुत इजाफा हुआ है. 5 लाख युआन तक गया है ये अभी जो हाल 2 साल में, जो पहले 1 लाख युआन में होता था निकल कार्बोनेट. तो बैटरी की जब तक कीमतें नहीं गिरेंगी तो ये कीमत गिराना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बड़ा मुश्किल है. लेकिन हाँ, इन्होंने जो बात बिल्कुल दुरुस्त करी कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे येस इट्स द रेशो ऑफ द ओल्ड द EV प्राइस एंड द करस्पॉन्डिंग आइस प्राइस इज क्वाइट क्लोज, 1.2 1.3. ये तो 1.0 की बात कर रहे हैं. क्या फ़ायदा बनाते हैं, क्या नुकसान बनाते हैं, वो अल्लाह जानता है. और जहाँ तक वो छोटी गाड़ियों का सवाल है, ये रेशो ना थोड़ा ज़्यादा होता है, एक 1.5 1.6 इस कदर होता है. तो इसलिए वो टाइम अभी वक्त काफ़ी लगेगा. और जहाँ तक, और मैंने तो पैनल के सभी लोगों का मैंने वो सुना नुक्ते नज़र, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी अददशुमारी हुई है यहाँ पे वो मुकद्दस तो ज़रूर है लेकिन गुमराहकुन भी है. और मैं बताता हूँ वो क्यों. इन्होंने बात करी TCO की. एक्चुअली कितने लोग हैं जो यहाँ पे TCO के बेसिस पे गाड़ियाँ खरीदते हैं? अगर ऐसा होता तो डीजल की तो एक भी गाड़ी हमारे मुल्क में नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि TCO के हिसाब से आप डीजल की जो अभी कीमतें हैं 2-2 लाख का जो फ़र्क है उसमें कभी नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन बिकती हैं. TCO में ये भी होता है कि आप इनिशियल पेमेंट क्या करते हैं. आप मेरे को बोलो आप 10 लाख रुपए की आप कोई घड़ी खरीदो और ये कभी भी हमेशा चार्ज रहेगी, तो मैं तो नहीं खरीदूंगा. मेरे पास 10 लाख की घड़ी खरीदने के लिए नहीं है. तो TCO हमेशा एक वो कोई मेयार नहीं होता है कि जिसके बुनियाद पे जो है कंज्यूमर जो है गाड़ी खरीदता है. इन्होंने बात की 10,000 डीलर्स हैं और एक भी लगा देंगे तो जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है वो होता है कि फॉर एवरी 10 EVs एक गाड़ी की ज़रूरत है, एक चार्जर की ज़रूरत है फॉर एवरी 10 EVs. अब 4 मिलियन का अगर अंदाज़ा है, जो 17% अगर जो होता है पेनिट्रेशन, 4 मिलियन EVs होंगी, उसके लिए आपको 4 लाख चार्जर चाहिए. वो ऐसे नहीं हो सकता कि वो 10,000 लोग 4 लाख लगा देंगे, वो बड़ा मुश्किल है. और तीसरी बात कुछ हमारे साथियों ने कही कि हम खुद चार्ज करते हैं, बाहर भी होता है चार्ज होता है. अब वो लोग चार्ज कर सकते हैं जिनके पास पार्किंग स्पेस खुद की हो, अपने घर में हो, जो घर की चार्जिंग करें. मैं वसंत कुंज में रहता हूँ, मैं रहता हूँ पहले मंजिल पे. हमारे वसंत कुंज में ये है कि पार्किंग नहीं मिलती. रात में अगर आप आओ 11 बजे 10 बजे तो जहाँ आपको पार्किंग मिलेगी वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दो. और मैं तो ये भी करता हूँ कि गाड़ी खड़ी करता हूँ और 100 मीटर दूर जाने के बाद वो
टुक टुक बंद करता हूँ, क्योंकि अगर आपने वहाँ खड़े होके उतरते ही बंद किया तो 4 पड़ोसी आ जाते कि भाई तू यहाँ गाड़ी को पार्क कर रहा है। तो ये पार्किंग, और एक मैं आपको असल शुमार बताता हूँ, हमारे मुल्क में सिर्फ 44% घर ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास खुद की रोज़ाना चार्जिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है। बाकी जितनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वसंत कुंज भी मिडिल क्लास में ज़रूर हूँ, लेकिन वसंत कुंज में कुछ अपर मिडिल क्लास वाले भी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे उनके पास वो सुविधा नहीं है। कोई चौथी मंजिल पे रहता है, वो कहाँ से चार्जिंग करेगा? हाँ, वसंत विहार में हो सकता है, वो ज़रूर वो है, और अब तो बड़े बड़े डीलर भी हैं तो उनके पास शायद ये चार्जिंग की फैसिलिटी होगी, लेकिन वो हमारे जो आम आदमी जो है मुल्क में, उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ अगर ये जो गौरव जी ने बताया कि पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से इजाफा होगा ईवीज़ में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितने जो माहरीन हैं उन्होंने ये बताया है कि ये 17-18% से ज़्यादा 2030 तक नहीं होगा, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, हाँ चाहे वो ब्लूमबर्ग। कुछ बोलना तो आप बताएं, और भी मैं अदद शुमारी में मैं और भी तवील और बस। This is a real lit fest happening now. So it is less automotive, more lit fest. शशांक जी, तो देखिए कैफियत तो ये है, ईवी एक टाइम आएगा जब बहुत तेजी से बढ़ेगी। There will be an inflection point when it will suddenly go up. That inflection point has been seen in China, Europe. It happens around and in many countries in Europe at 3% penetration, statistically speaking. इसका कोई लॉजिक नहीं दे रहा हूँ, कोई मंतकी मैं इसमें कोई वो नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन it happens at 3%. That we expect will happen in 24-25, after which it will start climbing up.